السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 89 ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ گفٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ گفٹ کے سلسلے میں کیا چیزیں منع ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ گفٹ کی تعریف اسلام میں کیا ہے، گفٹ کسے کہتے ہیں اور کوئی چیز گفٹ کب بن جاتی ہے، یہ دو باتیں جانیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، گفٹ میں سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ آدمی کو امید نہ ہو کہ کوئی لا کے دینے والا ہے۔ اگر یہ پہلے سے آپ کو ایکسپیکٹ ہے، یہ امید ہے کہ یہ بندہ آئے گا تو میرے لیے سامان لائے گا، یہ اب گفٹ نہیں ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے۔ گفٹ کے لیے لازم ہے کہ بندے کو پہلے سے اس کی امید نہیں ہو۔ مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے تو مولانا کو یہ امید ہو گئی کہ یہ بندہ ضرور ہم کو گفٹ دے گا۔ وہ اتفاق سے انہوں نے لا کر ایک ہدیہ پیش کیا تو مولانا نے کہا کہ میں اب یہ ہدیہ نہیں لوں گا، کیونکہ آپ کے دینے سے پہلے میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ بندہ کچھ دے گا، تو اس لیے میں اب اس کو نہیں لوں گا، آپ اس کو واپس لے جائیے۔ خیر، وہ بھی ہوشیار تھا، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا تھا، مسئلہ جانتا تھا۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد پھر آیا وہ۔ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ تو کہا کہ یہ کہا اب تو اب آپ کو امید نہیں تھی میں لانے والا ہوں واپس نہ، کہا یہ اس لیے اب یہ گفٹ ہے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے گفٹ کی کہ گفٹ کے لیے آدمی کو ایکسپیکٹنگ ہونی چاہیے، ایک بات۔ اور گفٹ اس وقت گفٹ کہلاتی ہے جب آدمی نے کہا کہ دیکھیں یہ چیز میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں، کسی کو بھی دیا اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بولا ہی نہیں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ، اور اس کو اپنے قبضے میں بھی نہیں لیا اور قبول بھی نہیں کیا۔ جیسے ہی وہ اس جگہ سے چھوڑ کر کے چلا گیا، 15 منٹ کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد پھر آ کر کہتا ہے کہ اچھا وہ میرا والا جو گفٹ ہے وہ واپس کرو۔ اب یہ دینے والے کے اوپر ہے کہ دوبارہ اس کو گفٹ کرے تو گفٹ ہوگا، ادروائز وہ اس کا جو جس نے گفٹ دیا تھا مال اس کا ہو گیا۔ تو گفٹ کے لیے شرط کیا ٹھہری؟ قبول کرنا اور اس چیز پر قبضہ کرنا، اگر وہ قبضہ کرنے کے لائق ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے گفٹ دیا ہے اس کے موڈ کے اوپر ہے کہ دوبارہ وہ آپ کو گفٹ کر دے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو نہیں ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں گفٹ کی باتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کے بارے میں موطا مالک کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں گفٹ دیا کرو اور گفٹ لیا کرو، تہادو تہابو، لیکن اس میں یہ بھی ایک شرط ہے، دینے کے ٹائم میں یہ نیت نہیں ہونا کہ اس کو گفٹ دو تو کہ یہ بڑا گفٹ دیتا ہے۔ اگر یہ نیت کر لیا آپ نے تو گویا کہ یہ اب گفٹ آپ کا تو گفٹ ہو گیا، لیکن وہ جو ادھر سے آ رہا ہے وہ گفٹ آپ کا نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے ایک بڑے گفٹ کی امید رکھ لی، سمجھے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ گفٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت بڑے بڑے گفٹ آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ہدیہ آیا، ایک جوڑا کپڑا تھا۔ اس جب کپڑے کی مارکیٹ ویلو نکالی گئی تو 24 اونٹ کے برابر ایک جوڑا کپڑا تھا۔ کپڑے کی جو قیمت تھی اس کی ویلو جب مارکیٹ میں جا کے نکالی گئی تو کتنی نکلی؟ بادشاہ نے بھیجا تھا تو 24 اونٹ کے برابر ایک جوڑا کپڑا تھا، یعنی کئی لاکھ روپے کا کپڑا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو گفٹ بھیجا، کیونکہ آپ کی عادت تھی جب گفٹ آتا تھا گفٹ بھیجتے تھے۔ تو آپ نے 25 اونٹ بیچ کر کے پھر اس کو گفٹ عنایت فرمایا، اس کے اسٹیٹس کے مطابق کیا کیا؟ گفٹ دیا گیا۔ تو وجہ جو بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں ہدیہ لیا بھی کرو ہدیہ دیا بھی کرو، اس سے آپ نے فرمایا کہ آپس میں جو ہے نا وہ دوستی بڑھتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو بہت تفصیل بات کریں گے۔ ہدیے پر بہت گائیڈنس اسلام کے ہیں، پر ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے ہدیے میں کیا چیزیں منع ہیں۔ سب سے پہلی چیز
یہ बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, अल्फाज थोड़े से इधर उधर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यऊदु फी हिबतिन कल कल्बी यक़ीउ सुम्मा यऊदु फी, गिफ्ट देने के बाद कोई आदमी वापस ले ले तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कुत्ता कह किया और चाट लिया। लिहाजा गिफ्ट देने के बाद फिर कभी जिंदगी में वापस नहीं लेना चाहिए। ये जो हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह होती है तो वो लिस्ट बना के देता है, कौन? लड़की वाला, कि मैं आपको ये गिफ्ट दिया। क्यों? कि अगर खुदा ना खास्ता शादी टूट गई तो ये मेरा सामान क्या है वापस करना है, एकदम शरई लिहाज से नाजायज हराम है, कतई जायज नहीं है। सिर्फ उतना सामान लेना जायज है जो आपने अपनी बेटी को दिया है। बेटी घर आ रही है, अपना सामान लेकर आ जाएगी। लेकिन ये कि जो आपने दामाद को ब्रीफकेस दिया, फला दिया, दो कुछ भी दिया, कोई चीज वापस लेना कतई शरन जायज नहीं है। और अगर वापस ले रहा है बंदा तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे गोया कि कुत्ता कह किया और चाटा। ये है, ये सब हम लोगों के ऊपर जो लानतें दुनिया में आई हुई हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस की मुखालफत की लानत है। किसी फील्ड में हम सुन्नत रसूल पर नहीं है। आप जब कभी डीपनेस में जाएंगे ना, किसी चीज में नहीं है। इबादत से लेकर के मामलात से लेकर समाजी जिंदगी से लेकर हर तरीका मुसलमानों का कम से कम 50 से 80% सुन्नत से क्या है, हटा हुआ रहता है। अच्छा, इसी तरह लड़के वाले क्या करते हैं, बहू को जो उन्होंने सोना दिया या दिया वो वापस मांगते हैं, वो भी नाजायज है। गिफ्ट देने के बाद कभी वापस होता ही नहीं है। सिर्फ एक ही शक्ल में बाद लोगों का फतवा है, हदीस है चूंकि कि वालिद अगर चाहे तो अपने बेटे से गिफ्ट वापस ले सकता है, बस, बकिया कोई नहीं। वजह क्या है? बच्चे का माल भी हुजूर ने फरमाया कि अंता व मालू का ले अबी का, कि तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। तो गोया गिफ्ट देने के बावजूद भी मालिक कौन रह गया? अब्बा रह गए, लिहाजा अब्बा वापस ले सकते हैं। इसी तरह अगर बाप को जरूरत है पैसे की मिसाल के तौर पर और बेटा कमा रहा है, चाहे दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है, अगर उसको जरूरत है और बाप ने बगैर पूछे हुए बेटे की पॉकेट से निकाला, ये कोई शरई लिहाज से चोरी नहीं है। और अगर वो पूछे, वो बता दे तो ठीक है, नहीं बताया तो भी ये उसका हक है कि वो अपनी जरूरत के लिए अपने बेटे के जेब से पैसा निकाल ले। समझे नहीं? बाप का इतना बड़ा हक है, अंता व मालू का ले अबी का, कि तू और तेरा माल दोनों किसका है? तेरे बाप का है। इस वजह से वो एक सिर्फ फतवा है, बकिया गिफ्ट देने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अबू दाऊद की रवायत है कि अगर किसी आदमी को ये मालूम हो जाए कि ये बंदा जो गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट देने के बाद लोगों से चर्चा करेगा, क्या कि मैं, आपको मालूम है ये मैं दिया हूं। अगर ये मालूम हो जाए कि बंदे की ये आदत है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये फख्र करना चाहता है, ज्यादा फख्र करने वाले से गिफ्ट कबूल ही नहीं किया जाए, गिफ्ट लेना ही नहीं चाहिए। ऐसे शख्स से गिफ्ट लेने से मना फरमाया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी आदमी ने किसी से कर्जा ले रखा है तो कर्जा जिसने ले रखा है उससे गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। मुल्ला अली कारी इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो इतना सख्त है कि अगर आप उसके घर की दीवार के पास से भी गुजरे और आपको साया की जरूरत हो तो उसके दीवार के साये में खड़े नहीं होना। क्यों? क्योंकि जिसको आपने कर्जा दिया है, जो कुछ भी रिटर्न उस कर्जे के अलावा आ रहा सब सूद है, सब क्या है? सूद है। इस पर सख्ती से, हमारे यहाँ तो बहुत इस पर फतावे दिए गए हैं, इस पर बहुत सख्ती से बात कही गई है कि गिफ्ट दिया है, आपको सवारी ऑफर कर रहा है, बैठ जाइए, जायज नहीं आपका बैठना। गिफ्ट दिया है, कर्जा दिया है, सवारी पे बैठा रहा है, कर्जा दिया है, आपके घर में कोई खाना भेज रहा है, एकदम कोई चीज जायज नहीं है लेना। हाँ, एक ही शक्ल में जायज अल्लाह के रसूल ने फरमाया इब्ने माजा की कि इसके पहले जब आपसे कर्जा न लिया था तो भी देता रहता था तो आप ले सकते हैं। देखिए कैसी बैलेंसिव बातें हैं। अगर एक आदमी से पहले से उसके दोस्त हैं, ताल्लुकात हैं, कर्जा नहीं लिया है, वो देता रहता है तो इस मौके पर भी दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब से कर्जा लिया है तब से आपके साथ ये कर रहा है तो इसका मतलब कि आपको सूद दे रहा है
उस कर्जे के बदले में, या ये कि आप सूद ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने कर्जा ले रखा है, अब हमको मालूम है कि ये हमारा कर्जा ले रखा है, तो कहता है उससे कि यार गाड़ी आपकी खाली है, 2 दिन के लिए गाड़ी दे दीजिए। इसके पहले नहीं मांगता था, अब कर्जा देने के बाद 2 दिन की गाड़ी उसकी मांग रहा है, कतई जायज नहीं मांगना भी। ये वो तो सूद दिया है, ये सूद लिया है, ये मांग करके क्या कर रहा है, सूद ले रहा है, कतई जायज नहीं है। ये आपको नाश्ता करा रहा है, नाश्ता पानी करा रहा है, और इसके पहले कुछ नहीं कराता था। सख्ती से इस पर फतवा है कि कतई ऐसी किसी किस्म की कोई चीज लेना जायज नहीं है। हदिया जो है ऐसी जगह पर लेना जायज नहीं है। अच्छा, एक और रवायत पहले कर फिर इसके बारे में बात करते हैं कि 4 चीजों के बारे में है कि अगर कोई आदमी आपको गिफ्ट करे, और ये शर्तें जो बताई गई नहीं पाई जाती है, तो गिफ्ट को वापस नहीं करें। मतलब आप कहीं पहुंचे और किसी आदमी ने आपको जो है ना वो दूध पेश कर दिया, आप दूध को वापस नहीं करें। अगर आपको नहीं पीना है थोड़ा सा निकाल के पी ले, लेकिन ये नहीं मैं दूध नहीं पीता, ऐसा नहीं बोले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। इसी तरीके से कोई आदमी खुशबू अगर दे, खुशबू फूल भी हो सकता है, खुशबू इत्र भी हो सकता है, खुशबू को भी वापस करने से मना फरमाया गया। अच्छा, अब इसमें इसका ख्याल रखना चाहिए, खुशबू देना अलग है और खुशबू लगाना अलग है। लोग क्या करते हैं, मस्जिद में बैठे हैं, उन्होंने खोला और सबको लगा रहे हैं, एकदम गलत है। क्यों? खुशबू आदमी की पसंद की बात है। आपको पसंद है, ठीक है, आप लगा लीजिए, लेकिन आप खोल करके क्यों दे रहे हैं उसको? खोल करके देने का मतलब यह है, कभी कभी ढक्कन अपने हाथ से पकड़े हुए हैं और उसको पकड़ा दिया उन्होंने, अब वो मजबूर है बेचारा खुशबू वापस करे तो गुनहगार होता है, और लगाना नहीं चाह रहा क्योंकि उसको पसंद नहीं है, तो आपने मुसीबत में डाल दिया खुद हदिया दे करके। आप खुशबू ऐसे तो जो महफिलों में दे देते हैं, ये कतई ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका आप उसको पूरी बोतल दे दीजिए, दिल चाहे लगावे, दिल चाहे रखे, दिल चाहे किसी को गिफ्ट कर दे। लेकिन ये जो आपने लगाने का चक्कर चलाया है, क्योंकि खुशबू में ये प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों को बहुत से खुशबू कतई पसंद नहीं होती है, वो बेचारे लेकर मजबूर होकर के अब आपकी वजह से खुशबू लगा रहे हैं। तो एक दूध मना किया, एक खुशबू मना किया। और एक रवायत में है, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत में तकिए का भी जिक्र है। कोई आदमी आप पहुंचे और किसी ने तकिया ऑफर कर दिया, पिलो तकिया भी दे दिया, तो तकिया नहीं आप रखिए, ऐसा नहीं करें। आपको ना भी लगाना हो पहले आप ले लें, भले ना लगाएं, लेकिन ऐसे नहीं वापस नहीं करें तकिए को। तकिए को भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और चौथी चीज बाद हदीसों में तिरमिज़ी की रवायत में है कि चिकनाई की चीजें, तेल जैसे ऑयल है, घी है, तो ज्यादातर अरबों के जमाने में जो है वो घी का ऑफर, लोग घी का गिफ्ट देते थे, दूध का गिफ्ट देते थे। पहले कोई बेचने वेचने का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं था, जिनके यहाँ ज्यादा दूध पैदा भी होता था तो एक बड़ी मिकदार लोग क्या करते थे, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते थे। तो घी, तो ये ले दे करके 4 चीजें हैं जिससे मना किया गया है कि ऐसा वापस नहीं करना चाहिए। ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, अबू दाऊद की रवायत है, सिफारिश करने वाला गिफ्ट ले, ये मना है। मतलब आपने मुझसे कहा मौलाना साहब मेरे बच्चे के दाखिले के लिए आप प्रिंसिपल साहब से सिफारिश कर दीजिए। मैंने कहा चलो। मैं जब सिफारिश किया तो बंदा मुझे गिफ्ट दे रहा है, अल्लाह के रसूल फरमाया ये गिफ्ट नहीं है, ये तो रिश्वत है। ये क्या है? ये अगर इससे पहले आपको देता रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर जब आपने उसकी सिफारिश की तब उसने क्या किया, आपको गिफ्ट दिया, उसको नहीं दे रहा प्रिंसिपल को, आपको दे रहा है। ये आप जो बीच में मीडिएटर हैं, ये जो गिफ्ट है ये गिफ्ट नहीं है, ये क्या है? रिश्वत है। इसी तरीके से एक कॉमन बात बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा, ये बहुत कॉमन हो चुकी है बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब ज़कात वसूल की जाती थी तो ज़कात एक डिपार्टमेंट कायम था, बाकायदा सरकारी तौर पर। तो उसमें 2 तरीके के लोग होते थे। एक लोग होते थे कि पहले जा करके अंदाजा लगाते थे कि इनकी 5 एकड़ की बाग है, इसमें इतनी खजूर होगी और इतना अंदाजन इनके ऊपर ज़कात निकलेगी। वो एक डिपार्टमेंट अलग था। तो बड़े होशियार लोग होते थे जो अंदाजा देख करके लगा देते थे कि 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 50, जैसे भी होता था। तो एक साहब जो है, बुखारी की रवायत, एक साहब गए और उन्होंने जाकर के मतलब अंदाजा लगाया, तो उनको एक साहब ने, जिनकी बात थी, उन्होंने उनको गिफ्ट दिया। जब उन्होंने गिफ्ट दिया, उन्होंने गिफ्ट ले लिया, जो भी दिया।
لیکن उनको ये डाउट हुआ कि बंदा इसके पहले तो हमें कभी देता नहीं था, आज हम आए हैं सरकारी मुलाजिम बन करके, तो इसने मुझे क्या किया है, गिफ्ट दिया है। तो उन्होंने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल मैं ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर तुम ना सरकारी मुलाजिम होते तो भी तुमको गिफ्ट देता? ना, कभी नहीं देता, तो मैं गया तो दिया हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसको जमा करो माल गनीमत में, माल बैतुल माल में, इस माल को बैतुल माल में जमा करो। ये क्यों दे रहा है? जब तुमको गिफ्ट देगा तो तुम जो आंकोगे, मतलब जो अंदाजा करोगे कि इसे 5 कुंटल है, तो तुम्हारे अंदर उसके लिए सिंपैथी पैदा होगी, तुम 4 कुंटल ही अंदाजा करोगे। नफसियाती तौर पर उसने आपको खरीद लिया, नफसियाती तौर पर क्या कर लिया, उसने आपको खरीद लिया है, लिहाजा आप सही तौर पर फैसला ही नहीं कर पाएंगे। सारा यही होता है। एक डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट क्या है, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, परचेज करने वाले लोग होते हैं। उनको क्या करते हैं, मार्केट में लोग क्या कर लेते हैं, उनको खरीद लेते हैं कि आप हमारे यहाँ से सामान लीजिएगा। उनको ये होली, दिवाली, दीपावली, मुख्तलिफ मौकों पर जो है उनको क्या करते हैं, देते रहते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, हर डॉक्टर को वो जो मेडिकल स्टोर वाला है, वो कंपनी वाला है, वो क्या करता है, वो उनको दवाएं देता है अपनी जगह, भाई हमारी दवा आप लिखिए। अब वो डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं जब समझते हैं कि अच्छी है। जब वो देखता है कि हमारी दवा डॉक्टर साहब नहीं दे रहे हैं, या कभी कभी उनके कैजुअल में भी दाखिल हो गया है कि वो ला करके उनको गिफ्ट मुख्तलिफ किस्म का देते रहते हैं, मुख्तलिफ। सिर्फ गिफ्ट देने की वजह क्या है कि हमारी दवा क्या हो, ये लिखी जानी चाहिए। अब डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि साहब मैं ठीक है, उसके बावजूद मैं लिखता नहीं उनकी दवा, जब समझता हूं अच्छी तभी लिखता हूं। ये 1% ऐसे डॉक्टर्स हो सकते हैं, वरना 99% क्या है, ना भी लिखें, आप नफ्सियाती तौर पर प्रेशराइज हो गए। नफ्सियाती तौर पर आपको प्रेशर हो गया है कि बंदा मुस्तकिल दे रहा, आप उसकी दवा समझ भी रहे हैं कि फला के मुकाबले में महंगी भी है, अच्छी भी नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट आपको लाला कर दे रहा है कि आप मजबूर हो जाएंगे और आप उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो वो सहाबी ने जो दिया उनको कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन नफ्सियाती तौर पर क्या किया जा रहा है, उसको खरीदा जा रहा है। लिहाजा अल्लाह के रसूल फरमाया कि ये गिफ्ट नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काजी के लिए तो सराहतन हदीस है कि कोई जज है किसी का गिफ्ट कबूल नहीं कर सकता। मालूम आपको, हिंदुस्तान के कानून में भी ये बात है, मालूम नहीं आपको मालूम है कि नहीं। अगर आपका मुकदमा किसी जज के यहाँ चल रहा है, सेकंड पार्टी वहां पर है, और आप एक एप्लीकेशन दे दें कि साहब मैंने अपने सेकंड पार्टी को देखा है कि जज साहब के यहाँ बैठे हुए चाय पी रहे थे और उनको गिफ्ट दे रहे थे, आपका मुकदमा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन डाल दें कि आपको डाउट हो रहा है कि ये जज से इनकी क्या है बनती है, अलग सलग ज्यादा है, उठना बैठना है, आप अगर एप्लीकेशन डाल देंगे आपका मुकदमा फौरन दूसरे कोर्ट में क्या हो जाएगा, दूसरे जज के पास ट्रांसफर हो जाएगा। आज भी कहां से लिया गया है, यहीं से लिया गया है, क्योंकि जज क्या हो गया, नफ्सियाती तौर पर बिक गया। जब वो लेगा तो नफ्सियाती तौर पर बिक जाएगा। लिहाजा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तो यहां तक फरमाते हैं कि अब गिफ्ट रह नहीं गया भाई। उस वक्त कह रहे अब गिफ्ट नहीं रह गया, सब रिश्वत है,